know, sir? Kya? They were paid, I suppose. I think they were paid, yes. You know it or no? No, I can tell you for certain that they were paid. I don't know exactly the amount which I can get you. What do we do with but I this? do know that they were paid for this. Do we need to ask them to come and respond? My lord, they... I mean, this report certainly did not do the task it was assigned. My lord, we have gone through it. I've read it out before your lordships. The deficiencies or, well, there is perhaps nothing in this. I think they need to come and respond. Otherwise, I mean, this report... एक काम की बात है पूरे रिपोर्ट में बता दें. मुझे तो नहीं नजर आई. यदि ये कर दें मसला हल हो जाएगा या मसला चले थोड़ा ठीक हो सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकता है. एक चीज बता दें पूरी रिपोर्ट में, इधर तकरीर उधर तकरीर, इसको एग्जॉनरेट करना तो उसको कंडेम करना. भाई ना आपका काम किसी को एग्जॉनरेट करना था ना किसी को कंडेम करना था. आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों को नाम ले रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को एग्जॉनरेट कर रहे हो. And it smacks of provincialism also, which is very unfortunate. Why are you doing this? What for? What is your position on this? My lord, the government has to either endorse the report or reject the report. My lord, our thinking is maybe coming to one conclusion, but we want to know, is the government supporting, endorsing this report or not? My lord, the federal government is to consider this report. While it is काफी दिन हो गए आपको, कब तक consider करेंगे? I will get a follow-up on this, but as has been observed, and I have also gone through it with you, I don't see what action items should the government or the government can take based on the recommendations of this report. There is nothing clear. There is no clarity here, and even the liabilities or the responsibilities required to be fixed. There is also nothing. कानूनियत को अगर रोकना है तो कुछ तो करना होगा. गुस्ताखी माफ वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ये मल्टी पावर प्रोग्राम वाला जो है ना, ये सिलसिला खत्म हो जाए. जी, उससे तो कुछ नहीं होगा ना. वो अब तक तो यही होता है, मट्टी डालते आए हैं तो यहाँ पहुंच गए. ये भी वही लग रहा है. Maybe it was acted upon the 2019 judgment, February. 9th May 2023 may not have happened. That's right. We can just go back to the judgment actually. ये इससे तो कुछ नहीं समझ आई. In judgment we have given precise things to do. Federal government to actually do something. इसके अंदर तो उन्होंने actually responsibility fix करनी थी कि भाई कौन लोग हैं जो delinquent थे या responsible थे. वो तो हुआ नहीं. Judgment's paragraph 53 is quite clear in terms of what it requires the government to do. We've given very clear, precise things. Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly protest is peaceful and complies with the law. So there are clear guidance. There is clear guidance. अब आप आग जलाओ, मारो लोगों को, वो किधर से कौन सा हक आपको देता है? इस्लाम आपको हक देता है? जरा बताएं. इस्लाम में तो अगर पेवमेंट पे एक पत्थर पड़ा हो ना, वो आपको सवाब मिलेगा, आप उस पत्थर को हटा दें. या कोई लकड़ी पड़ी हुई है, रास्ता रोके उसको आप हटा दें, वो आपको सवाब मिलेगा उस बात का जो आपने नहीं किया काम. देखिए, protesters who obstruct people's right to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. ये इनका काम था करने का, वो उन्होंने किया ही नहीं. Constitution earmarks responsibility of election commission. All parties have to account for the source of their fund. This is for the election commission. The state must order. The intelligence agencies should monitor activities of all those who threaten the territorial integrity of the country and all those who undermine the security of the people and the state by resorting to or inciting violence. ये हमारे recommendations हैं, clear cut. और हमने आपको ये भी कहा था कि कानून बना दें. अब वो एक आ गया DGC, उसने कहा जी मेरा मैंडेट ही नहीं है. भाई अच्छा बता दो आपका मैंडेट क्या है. वो मैं नहीं बताऊंगा आपको. मैंने कह दिया बस काफी है. अच्छा भाई आपका बता दें ये ना मैंडेट नहीं है आपका. टेरर फाइनेंसिंग मेरा मैंडेट ही नहीं है. मुझे ताज्जुब हो रहा है ऐसी बात कोई DGC कह सकता है, खासतौर से कंट्री विच हैज सफर्ड सो मच टेररिज्म. भैया एक इंसिडेंट हुआ होता तो एकदम कह दें ये तो हमारा मैंडेट ही नहीं, तो नई चीज आ गई, हमने कभी सोचा ही नहीं इसके मुतालिक. वन ऑफ द कंट्रीज सफर्ड मोस्ट ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड, ये आगे कह रहे हैं साहब के जी हमारा मैंडेट ही नहीं है. अच्छा भाई थैंक यू वेरी मच, आपका मैंडेट ही नहीं है तो फिर आपको इनको रिपोर्ट में लिखना चाहिए था इनका मैंडेट दीजिए इनको.
That's right, sir. वो नहीं लिखा। ऐसे केसेस बलूचिस्तान हाईकोर्ट में ऐसे केस हमारे सामने आए हैं जिसमें नादरा के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के, और वो इस बुनियाद पे ब्लॉक हुए कि जी ISI ने रिपोर्ट दी है कि ये टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ कंट्री से ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लिहाजा इनकी CNIC ब्लॉक कर दें। तो वहाँ इंपोर्टर एक्सपोर्टर के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए CRC RLC की कमेटीज़ में ISI के ऑफिसर्स उनके नुमाइंदे बैठते हैं वहाँ वो रिपोर्ट वैलिड हो रही है कि वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी ये मिस्टर A और B टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, लिहाजा इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। Right. और वो स्टेट बैंक तक भी ट्रांजैक्शन रुक जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी इफेक्ट हो जाता है और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक भी हो जाता है, और वो हाई कोर्ट की रिट जुडिशरी को इन्वोक करते हैं, सेक्रेटरी से होते हुए आते हैं। तो वहाँ पे तो ISI टेरर फाइनेंसिंग की रिपोर्ट दे रही है, यहाँ वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट ही नहीं था ये। वो कहा ना, एक शख्स ने आके कहा कि नहीं है, तो बस वो वहीं रुक गए विदाउट एक्चुअली प्रोबिंग इट फर्दर कि भाई क्यों ये कह रहे हैं। उसकी वो रेसिटी स्टेटमेंट की जो जेन्युइननेस है या ट्रूथफुल है उसको एसरटेन करने की नेक्स्ट स्टेप भाई वो तो आपका काम ही नहीं था। आउट ऑफ द वे जाके आप उनका जिक्र कर रहे हैं, फिर आउट ऑफ द जे जाके आप एग्जॉनरेट कर रहे हो। भाई आप जिक्र ही नहीं करते, हमने तो नहीं कहा किसी का, हमने तो किसी का जिक्र नहीं किया ना, किसी का नाम लेकर नहीं है, नाम नहीं है अपने जजमेंट में नहीं है सर। इनको बहुत शौक था, हाँ कह सकता हूँ पर ताबेदार है। हाँ आप क्यों खड़े हो रहे हैं? अगर थोड़ी सी इजाजत देते हैं मुझे, मैंने आपके मुतालिक भी कुछ तस्करा है? जी सर। वो कौन से पेज पे है? सर मुझे रिपोर्ट नहीं मिली, और लेकिन इनके मुतालिक एक तस्करा है, एक है पेज 141 है शायद। जी नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तस्करा इनके मुतालिक है। Yes sir, if you may kindly turn to page 125. This is TOR number 3. 125, 125, the typewritten 125, handwritten 126, volume 1 sir. हाँ, TOR number 3. हाँ ये पढ़ें जी। A sir, Mr. Absar Alam, the then chairman Pemra stated that in wake of hanging of Mumtaz Qadri and subsequently इसके अलावा मेन रिपोर्ट में जी वो पहले बताएं। सर दिस 141 देखें। अच्छा वो देखिए मेन रिपोर्ट में भी कुछ इसके मुतालिक तस्करा है इनके मुतालिक। ये सर अब ये रिकमेंडेशंस वो कह रहे हैं इन्होंने आके बयान दिया मगर हम इनके बयान को बिलीव नहीं करते हैं, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही। As for handling of media and statement of Mr. Absar Alam, he wants to read out वो वाला पोर्शन कहाँ है? मैंने कहीं पढ़ा तभी मार्क नहीं किया शायद। ये जस्ट अ सेकंड सर, मैं अभी लेट मी जस्ट बिकॉज़ दे हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे फोन किया जनरल फैज ने, उन्होंने कहा कि जी ये साबित नहीं कर पाए। भाई साबित क्या करें, कह रहे हैं ना, आप जरा कर लें इनसे इनकी। मैं ऐसी कोई बात कर रहे थे वो इसी पे मैं बात, जी मैं ये अभी 141 पे नहीं वाला, I'll take you to the statement. इसी में डी है। M 141 पे M दी स्टेटमेंट वो मैं यहाँ पे आपकी just हाँ ये पेज 122 पे आ जाएं। जी 126 माफ कीजिए। जी जी क्लॉज डी है वो, डी ABCD। The statement of the statement of Mr. Absar Alam alleging that Lieutenant General Faiz Hamid pressurized him to restore Channel 92 could not be substantiated, given the fact that the owner of Channel 92 as well as the current chairman Pemra affirmed that the said channel was not closed in the first place. Rather, the channel was closed along with all other channels on the direction of the federal government under Section 5 of Pemra Ordinance. This fact was also alluded to by Lieutenant General Faiz Hamid by stating that it was done on the direction of government to prevent glamorizing of protesters. तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये अब्सार आलम जो चेयरमैन पेमरा थे इनको हम तस्दीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनरल फैज हमीद ने इसके बरक्स बात कर ली है। And then इन्होंने दोनों को आपस आमने सामने खड़ा कर दिया, नहीं वो उनकी जरा कर लेते, वो उनकी जरा कर लेते जी। फिर वो कमीशन अपने नतीजे पे पहुंच जाता कि भाई अब्सार आलम साहब सही बात बता रहे हैं या जनरल फैज हमीद साहब सही बात बता रहे हैं। फिर ये इसका ही अगर आप चलें पेज 141 पे पैराग्राफ M, ये तो ये अगर इसके बगैर किए वो तयन कैसे कर सकते हैं?
कि ये सही बयान दे रहे हैं या वो सही बयान दे रहे हैं। इस पे पैराग्राफ M141 पेज पे they have written about General Fayaz confession about he called me. ये इनके मुतालिक पेज 58 पे आइए। Page 58, sir. तो ये स्पेसिफिक एलिगेशन दे रहे हैं ना। जी सर। He stated that he assumed the charge of the office. ये सारी देखिए पूरा एक इनका टाइटल दिया हुआ है। हाँ, अब ये पूरी इनकी बातें हो रही हैं जी। अब ये पैराग्राफ 149 में आ जाए। He stated that the approach of Lieutenant General retired Faiz Hamid, the then DGC, to Chairman Pemra was against his constitutional and legal mandate. He, in his capacity, told Faiz Hamid, the then DGC, that it was not possible to restore the transmission. The call ended. After some time, he called again over his cell phone and told him that other TV channels were also showing the same stuff. So he should either restore Channel 92 or close all TV channels, as he added that Channel 92 was approaching him again and again. In response, he told him that other channels were not broadcasting the same visual scenes. स्टेट अटॉर्नी जनरल, हमें नहीं पता, नाम इनसे पूछेंगे, ये काम था कमीशन का। इन्होंने एक बयान दे दिया। अब ये सही बयान है गलत बयान है, अगर वो इस पे यकीन नहीं रखते इनके बयान पे तो फिर इनसे सवाल जवाब करते हैं ना, या उनको मौका देते कि जी आप आ जाइए जनरल फैज हमीद, आप आके इनसे सवाल जवाब कर लें। और ये उनको मौका दे देते कि जी आप उनसे सवाल जवाब कर लें, और फिर वो नतीजे पे आ जाते कि जी इनमें से कौन सा इन दो में से कौन सही बात कर रहा है। And then the commission भाई ऐसी तरीका होता है ना, और कोई तरीका तो यही तरीका होता है जिरा करने का। इनका तो सीनियर पुलिस ऑफिसर है भाई, एक आदमी किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है तो वो दूसरे को मौका देगा ना कि भाई ये आपके खिलाफ कह रहा है, वो कहेगा